Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me. So today we decided that we will take a lesson on biodiversity. बायोडाइवर्सिटी वर्ड कब इस्तेमाल हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. आई विल टेक योर क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड बिकॉज अदरवाइज थोड़ा मुझे डिस्टर्बेंस लगने लगता है. बायोडाइवर्सिटी एज अ कॉन्सेप्ट केम फर्स्ट इन 1985. उसके पहले हम वर्ड यूज करते थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैज रिमेन द सेम बट द यूसेज ऑफ द वर्ड हैज चेंज्ड. हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी का ऑन द 22nd of May. On this day this year for 2021 it has been pledged कि हम जो है इस साल अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट करेंगे. वी फॉर द एनवायरमेंट. दिस इज अ कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ 2020 जब हमारा कहना क्या स्लोगन था फॉर द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे. Our solutions are in nature. और 2021 के लिए हमारा स्लोगन है We are a part of the solution. I repeat, for 2021 our slogan is We are a part of the solution. And 2020 में we were Our solutions are in nature. तो 2020 में हम कह रहे थे कि हमारे सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस नेचर में हैं. और इस साल 2021 में हम कह रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मीनिंग टू से दैट वी एज ह्यूमंस इफ वी कोलैबोरेट ओनली देन कैन वी मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. 2050 तक इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1992. It is also known as the UNCBD, that is the United Nations Convention on Biodiversity. It came into existence in 1992. Its present signatories are 193 countries. और इस साल इसका कन्वेंशन अभी May 22 को होना था, but because of the COVID situation, it has not been held and it is likely to be held on the 15th of October. And the place where they are saying that this is going to be held is called Kunming in China. I will write it for you. Kunming in China, and that is the hilarious part of it, because we have faced a COVID situation which is said to have evolved out of China, and it is said that as the biodiversity of the earth reduces, our capacity to withstand all such viruses and all such fungi and parasites is going to reduce with time. Biodiversity के दो हिस्से हैं. A, the concept, the factors which affect it, how do we measure biodiversity, and the other part is the conservation part. Conservation part में आपके सारे national parks आ जाते हैं, आपकी जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, आपका वेटलैंड आता है, रामसर कन्वेंशन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. एंड बायोडाइवर्सिटी पर से एज अ कॉन्सेप्ट इट रिमेन्स a little different. So we will first, in today's class, we are going to talk about biodiversity per se, and in the next class I will take conservation, because biodiversity in itself becomes a very extensive kind of a concept. अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए we need to understand what is biodiversity. So biodiversity is the variety of life on earth in all its forms and in all interaction. So our plant, animals, चाहे नीचे से ऊपर तक, if you go by the division in the animal kingdom, right from the protozoa to your bacteria to your fungi to your mollusk,
फिर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सारे ही इसके हिस्सेदार हैं। प्लांट्स में ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एल्गे, फंगाई, योर एंजियोस्पर्म्स, एवरीथिंग, non-flowering, flowering plants, everything comes in the sphere of biodiversity. Biodiversity आप understand करते हैं in interaction with the environment and both influence each other. There are various zones of biosphere and a concept has come by Myers where he talks of biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot क्या होता है? आपके पास इन्होंने 34 इकोसिस्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं अर्थ पे जिनको की एक्सटिंक्शन के करीब है। अब यहाँ पर बहुत प्रकार की स्पीशीज है जिसको एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक का क्या मतलब है? एंडेमिक मतलब जो उस जगह के लिए नेटिव है और वहां से उसके बाद वो चीज कहीं और नहीं मिलती, वो स्पीशीज कहीं और नहीं मिलती, इस वजह से इन एरियाज को हम एंडेमिक कहते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में 10 ऐसे इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे कि देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल्स। We will take up these 10 ecosystem zones. We will also take up what are the factors which affect biodiversity. Then we will try and understand कि biodiversity को हम measure कैसे करते हैं. The factors which are responsible for the erosion of biodiversity, that also we'll try to understand. अब हम लोग सबसे पहले क्या कह रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? It includes all the variety of life on earth in all its form and all its interaction. हम ये भी बताना चाहते कि if there is a loss to biodiversity, we are hurtling towards a sixth kind of an extinction on earth. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि there have been 5 massive extinctions on the surface of the earth. What are these 5 massive extinctions? एक सबसे पहले all of them are attributable to geological reason, मतलब because of the natural physical environment which existed on earth, we had these mass extinctions. So first there was a huge lot of volcanic eruptions. Volcanic eruption की वजह से there was a mass extinction on the surface of the earth. इसके बाद we had some meteorites की वजह से पूरे 65 million years ago हमारी पूरी डायनासोर वाली जो रेस है वो हमारे अर्थ के प्लैनेट से डिसअपियर कर गई थी. There were a series of ice ages millions of years ago, about 123 million years ago, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डिस्ट्रप्शन हुआ था और मैस एक्सटिंक्शन हुआ था. और कहा जा रहा है कि this loss to biodiversity we are hurtling towards the 6th mass extinction. All efforts of humanity at present, efforts of biologists, efforts of environmentalists are such that कि ये चाहते हैं कि 2050 तक at least we are able to control the loss of species. अब species क्या होता है? Species is the smallest unit for interaction between two kinds of living organisms. तो अगर आप जो एक species है वो जब एक रिप्रोडक्टिव रिलेशनशिप में दूसरी के साथ रहेगी तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम स्पीशीज कहते हैं. स्पीशीज किस चीज से बनी होती है? स्पीशीज जीन्स से बनी होती है. तो अब जब हम देखेंगे कि हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके वेरियस लेवल्स हैं. वो लेवल्स क्या क्या होते हैं? एक जीन्स का लेवल होता है where there is a diversification or bifurcation in the genes of the species. एक species के level का bifurcation होता है. फिर ये species together form a community. फिर all these communities together form an ecosystem. So these are the various grades of the biodiversity which exist. Who is known as the father of biodiversity? Edward Wilson Osborn को हम कहते हैं he is the father of biodiversity. He is also called the new Darwin. And why is Wilson Osborn called the father of biodiversity? Because way back in 1985,
he was the first to recognize that the disappearing forests and the disappearing animals will ultimately bring down the sixth extinction of this earth. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है हिप्पो, जिसके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे हैबिटेट लॉस है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, दैट ऑल्सो विल टेक अप. और इन रीजंस के कारण ही सेज दैट देयर इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू कंजर्व व्हाट वी वांट टू कंजर्व. ऐसा कहा जा रहा है कि अब हम इस देश में हर दिन 150 स्पीशीज लूज कर रहे हैं ड्यू टू एक्सटिंक्शन. ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा इज अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस, बट वी विल गो बाय व्हाट UNCTAD says and the WWF because these two agencies are the most authentic. और इनके हिसाब से हम लोग 150 स्पीशीज रोज खो रहे हैं ऑन प्लैनेट अर्थ. इनको खोने से ऐसा नहीं है कि आपका इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहा है, but over a period of time, because of the interlinkages between species, between communities, between ecosystems, we are likely to lose the biodiversity of the planet and ultimately we will be losing lives. अगर आप बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करिए तो आप सांस भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं पी सकते, खाना भी नहीं खा सकते अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो. ऐसा क्यों? बिकॉज प्लांट्स आर अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर आपके प्लांट कवर चला जाएगा, आपका फॉरेस्ट कवर चला जाएगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. हमने देखा है कि ऑलमोस्ट जर्मनी हैज लॉस्ट 75% ऑफ इट्स इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द लास्ट 25 years. और इंसेक्ट पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इंसेक्ट्स कोई पॉलिनेशन नहीं होता. We have tried to artificially bring in pollination, but we have not been successful. तो जो pollination bees करती हैं या जो pollination हमारे monkeys करते हैं, ये pollination deep अपने tropical forest में जो animals रहते हैं, वो जो इस प्रकार से dispersal of seeds करते हैं जिससे fruits होते हैं, उसके बगैर हम survive नहीं कर सकते. So we cannot have air without the plants, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे. हमको खाने को नहीं मिलेगा because we will not get food to eat if there is no dispersal of fruits. And it is said that our forests are the go downs for a huge amount of medicines which are being manufactured at present. तो आप यकीन करिए कि जो artificial chemicals हम यूज करते हैं अपनी मेडिसिन में, they are very expensive. और हम बहुत ज़्यादा हद तक अपने एनवायरनमेंट, अपने फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है फॉर मेडिसिन. और अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारे पास ये मेडिसिन नहीं रहेंगी. देयर इज एन एस्टिमेशन बाय UNCTAD इन द ईयर 2020 वेयर दे आर सेइंग कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे प्लैनेट पे हो रहा है, इसके लिए जो अभी अर्थ एग्जिस्ट कर रही है, इसके अलावा हमें एक और 1.56% की अर्थ चाहिए होगी, मोर देन द प्रेजेंट अर्थ, टू बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस प्लैनेट. फर्स्ट, if we want to live the lifestyle of an American citizen, then we want how many? 3.9 Earths, the same as the present one, to exist in the near future. If you want to complete the century, if you want to live like the resident of Qatar, we will need 4.8 such Earths. मतलब एक हमारी अर्थ है जिसका आप सर्कमफ्रेंस, आप पूरा एरिया कहते हैं कितना है? 40,748. 40,748 में पूरा आपका ये अर्थ का सर्कमफ्रेंस आता है. अब इसी के बराबर आपको 3.9 और अर्थ चाहिए यदि आप एक अमेरिकन सिटीजन की तरह रहना चाहते हैं. अगर आप इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है अगर आप इस तरह से जीना नहीं चाहते. There is a concept called natural economics. Natural economics में ऐसा होता है कि जो हमारे बायोस्फीयर्स हैं, एंड हम प्रिडिक्ट करते हैं मोटा मोटा, आर बायोलॉजिस्ट्स एंड आर एनवायरमेंटलिस्ट से that we have 17 such biospheres on earth. ये जो 17 बायोस्फीयर्स हमारी अर्थ के हैं,
इनकी एनुअल वैल्यू, एंड आई रिपीट, देयर एनुअल वैल्यू इज $33 trillion. That is the amount of money which we are getting from the biospheres in one form or the other. जैसे आपके पास जो एक फंगस होता है वो एक एनिमल है स्लॉथ. Those who have seen Lion King, जो एक वो है बच्चों की, उसमें वो एक स्लॉथ दिखाया है, the one who keeps gobbling up everything, that's a sloth. उसकी बहुत लंबी सी टंग होती है और वो कुछ भी टंग बाहर निकालता है तो फट से वो उसको खा जाता है. Those who've seen the Lion King will understand what a sloth is. तो जो स्लॉथ की फर पर फंगाई लगता है, that is very good and serves as a medicine for cancer patients. अब आप स्लॉथ को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहे हैं. ऑलरेडी हम लोग डोडो, एक को जो मैमथ दिखाते हैं, दैट बिग एलिफेंट इन द आइस एज जिसको दिखाते हैं, दैट्स अ मैमथ. मैमथ आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ. तो जिस तरह से हम एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारे को मेडिसिन मिलती हैं वो हमारी अब खत्म हो जाएंगी. There is an estimation by WWF that 97% of this earth is being occupied by humans and their 5 livestock. 5 livestock में क्या होगा? आपके ये गाय भैंस आ जाते हैं उसमें, आपका ये पोल्ट्री और पिग आ जाएगा उसमें, आपके हॉर्सेज आ जाएंगे. These are the things which we need to survive. और ये क्या कर रहे हैं? ये जिस प्रकार से हम इनका बायोमास इंक्रीज होता जा रहा है, इससे हमारे लेवल ऑफ पोल्यूशन, इससे हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है. इफ यू आर अवेयर ऑफ द ग्रेट फायर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इतने फायर्स वहाँ पर क्यों हुए? Why did these fires take place in Australia? These fires took place in Australia because of the huge population of cows and buffaloes which they had, जिसकी वजह से कि इतना ज़्यादा ड्राइंग हुई उस एरिया की. देयर वाज ओवरग्रेजिंग ऑफ द लैंड. ओवरग्रेजिंग की वजह से देयर वाज सॉइल इरोजन. टेम्परेचर्स हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज. और जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जहाँ कभी कभी बारिश होती थी, वहां बारिश होना बंद हो गई. और पहले भी ऐसा नहीं है कि डेजर्ट फायर्स नहीं होते थे, डेजर्ट फायर्स होते थे, बट वो अपने आप नेचुरली कंट्रोल हो जाते थे. अभी दिस टाइम द फायर्स हैव गॉन अलोंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फायर्स विच टुक प्लेस इन 2019. आप उसके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा. Coming to the Amazon forest. The Amazon forests are said to be the lungs of the earth. ऐसा कहते हैं कि 10 to 15% of oxygen जो हमें मिल रही है is because of these Amazon forests. अब अगर आप बायोडाइवर्सिटी की स्केल पे देखिए तो the most rich continent in biodiversity is South America. The richest country in biodiversity is Brazil. अगर आप स्पीशीज की वेरिएशन को देखना चाहेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट देयर आर 14,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन कोलंबिया. और अगर आप ग्रीनलैंड चले जाते हैं तो वहां पर जो है खाली 56 वैरायटी ऑफ बर्ड्स है. अगर आप इंडिया आ जाते हैं तो यहाँ पे 1200 वैरायटी ऑफ बर्ड्स है. Why I am giving you these statistics is to understand the variation which exists in biodiversity of a region. अब ये जो गोल आकार है, ये बहुत ज्यादा गोल मुझसे बन नहीं पाया है, but I think that this is the Earth. अब Earth में अगर हम ये 0 डिग्री मान लें तो this is the equator and this is 23 degrees north. ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. It is said that 70% of the biodiversity exists between these two tropics. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि the earth is divided into latitudes and longitudes. अगर नहीं पढ़ा है तो सिंपली आपको बता दें कि x एक्सिस पे आपका लैटिट्यूड आता है क्योंकि these are flat straight lines और लॉन्जिट्यूड आपकी लंबाई में आता है. आज बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए हमको सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में परवाह करनी है, लॉन्जिट्यूड के बारे में हम उतनी बात नहीं करेंगे. तो 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर है और 23 डिग्री नॉर्थ साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ऐसा कहते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है बायोस्फीयर की, वो इन दोनों के बीच में बिटवीन द ट्रॉपिक्स कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर आप इधर से फिर इधर जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा आर्कटिक सर्कल, ये आपका आ जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल और ये आपका नॉर्थ है और साउथ है. From North Pole, which is at 90 degrees
as you come towards 0 degrees, your biodiversity increases many fold. और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ जाते हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है. सो वी आर सेइंग दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट ओनली अप टू अ लिमिट. अगर आप इंडिया के थार डेजर्ट पर जाएंगे तो थार डेजर्ट में आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी. व्हाई? बिकॉज जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वहां पर कोई चीज उगती नहीं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है. ऑल्सो द सॉइल कैन ओनली होल्ड दिस मच एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. बट द ट्रॉपिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट हॉटस्पॉट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो जब भी आप अपना आंसर लिखिए, किसी भी कंट्री के बारे में आपसे बोला जाए या आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में कोई जिक्र करना हो, अगर आप क्वेश्चंस देखिए बायोडाइवर्सिटी के, तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस अबाउट बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन यू कंजर्व इट. एक ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है. फिर उन्होंने पूछा है व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब बायोस्फीयर रिजर्व्स आपका कंजर्वेशन में आएगा. फिर देयर इज अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, देयर इज समथिंग ऑन द डियर पार्क, देन wetland convention, then sustainable development, then Ramsar convention. ये सारी conservation के पार्ट हैं. और बायोडाइवर्सिटी पर से में वो ये पूछते हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे. What are the factors which go into the degradation of the environment? When they write that, then it becomes the biosphere reserve. लिखा हुआ है. I'm so sorry for this disturbance. We didn't realize कि ये problem थी. Anyway, so what I was trying to say is ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है और इसके नॉर्थ और साउथ में between these areas आपको पूरी बायोडाइवर्सिटी मिलती है. Now coming back to where we were, ये ऐसा मानना है सबका कि हमारे पास इस समय 1.7 मिलियन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज है. और ऐसे बताया जा रहा है कि 7 to 8 मिलियन स्पीशीज है हमारे पास, जो कि इस वक्त हमको उनकी मैपिंग नहीं हुई है. मैपिंग होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है. बट सम पीपल एस्टिमेट दैट देयर आर अनदर 100 मिलियन स्पीशीज व्हिच आर अवेलेबल ऑन अर्थ जिसकी मैपिंग नहीं हुई. बट इट इज फॉर पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जस्ट रिमेंबर we have mapped about 1.7 million species on the planet Earth, and that 7 to 8 million are still left to be mapped. अब heartland of biodiversity में अगर आप जैसे देखिए कि in tropics within a kilometer of 15 hectares या 37 acres, Borneo forest में there are 700 species of trees. अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज सिर्फ इतनी है. तो it means to say that 700 species of trees are found in only 37 acres of Borneo forest, which is an area in the tropical region. और ये आप देखेंगे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सारे आइलैंड्स हैं which are near Indonesia, और ये आइलैंड्स are all in the tropical belt. तो इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया आएगा. Whereas when you go towards North America, which doesn't come in the tropics, it comes in the Arctic Circle. Arctic Circle में वो आता है. Arctic Circle में which is 66 degrees north from the equator. जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कम्स इन दिस 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. तो वहां पे वैरायटी टोटल उस कंट्री की इज अबाउट 700 ट्रीज,
जबकि इन अ स्मॉल एरिया इन बोर्नियो इन 15 acres you have about some 700 plants. इसको स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज की अबंडेंस इस तरह से करके डिफाइन किया जाता है. We will now go into what are the levels of biodiversity. There are species की diversity होती है. Species की diversity में क्या होता है? Species richness, which means how much of any species is present in a particular community. और एक species diversity होती है, means the number of species which are present in one ecosystem or one community. For example, अगर आप tropics में देखेंगे तो वहाँ पे आपको रबर ट्री भी मिलेगा, वहाँ पे आपको पाम ट्री भी मिलेगा, वहाँ आपको ओक ट्री भी मिलेगा. Now these are all different species in one ecosystem. There can be many varieties of the palm tree. तो जो ये variety है of the palm tree, ये आपको ये different varieties of palm tree आपकी species richness के लिए responsible हैं. These are all the various levels of biodiversity. अब level of biodiversity के साथ साथ एक concept आपको मैं दूंगी. एक है water distance from the sea, one is that, and second is land and sea breezes, one is that concept, and one is the concept of altitude. अब altitude में आपके पास क्या हो जाता है? Altitude में आपके पास हो जाता है कि as you keep on rising, जैसे जैसे आप for every 166 meters of rise, the temperature falls by 1 degree centigrade. ये आपको बताया किसी ने कि the effects of altitude on temperature. अब इसको आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि you will be better able to appreciate कि altitude के संग जैसे जैसे what is altitude? Altitude is the distance from the sea. So for every 166 meter rise, for every 166 meter rise, the temperature falls by 1 degree centigrade. It does not mean necessarily that with the decrease in temperature, the diversity falls. In fact, with the decrease in temperature, अगर आप इस तरह से जाइएगा और ये आप इंडिया का मैप समझ लीजिए, ये आपके पूरे वेस्टर्न घाट से. वेस्टर्न घाट्स are considered to be the one of the hotspots of biological diversity or biodiversity. जैसे जैसे और ये आपकी सी आप जैसे बढ़ते हैं तो इसमें टेम्परेचर गिरता है और बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. और इस वजह से इसको ऑल्टीट्यूड को बल्ज कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी बल्ज. ये बल्ज क्या होता है? The bulge is that up to a limit, when the temperature falls, the biodiversity keeps on increasing. However, after a limit, it stops. क्योंकि temperatures इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं that the amount of precipitation and temperature falls, so the soil is not so conducive for these species to grow. The same is the condition with the tropics. Tropics के साथ भी ऐसे ही है कि जैसे जैसे आप एकदम इक्वेटर पे पहुंचेंगे तो इतने टेम्परेचर हाई होते हैं कि वहां पर डाइवर्सिटी आपको कम दिखेगी, बट आप जैसे इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ साउथ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप बढ़ती जाएगी, बिकॉज नाउ द टेम्परेचर एज वेल एज द रेनफॉल आर इंक्रीजिंग अप टू अ लिमिट. तो अगर आपका ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के इतनी दूर में दोनों तरफ आपके सारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स मिलते हैं. इसी तरह से 2/3 of the earth's surface is covered with water and 2/3 of India is also surrounded by water. So you have the Arabian Sea and you have the Bay of Bengal and you have the Indian Ocean. यहाँ पे आपके पास जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये भी हमारे हॉटस्पॉट जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है उनका हिस्सा है. तो अगर आप
देखेंगे ग्रोथ पूरी फैक्टर्स लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो दे विल बी species will form a part of a community and the community will form a part of the ecosystem. There will be a variation in species and between species. जितनी richness होगी between species उतना rich आपका biodiversity maintain किया जाएगा. अब जो species की richness है उनको हम अल्फा, बीटा और गामा की तरह से measure करते हैं. What is species richness? Species richness are कि how many species are there in a particular area. If suppose that animals and plants की diversity बहुत high है, तो आपके पास both mammals as well as insects are there in one common area, तो फिर वहाँ की जो species richness है वो बहुत ज़्यादा है. उसी तरह से उसकी evenness means within a species कितना variation है, that is the evenness of the species. यार उस स्पीशी के कितने लोग प्रेजेंट हैं उस इकोसिस्टम में, उसको evenness कहते हैं. और इसको हम मेजर करते हैं by the process of alpha, beta and gamma. Now what is the alpha diversity? Alpha diversity refers to diversity in a particular area or community or ecosystem and is measured by counting the number of species within the ecosystem. तो suppose that कि आप एक ट्रॉपिक्स में गए, तो ट्रॉपिक्स में आपके पास नीचे एक कैनोपी है, कैनोपी के बाद आपके पास श्रब्स हैं, श्रब्स के बाद आपके पास ट्रीज हैं, और ट्रीज के बाद आपके ऊपर उसके ऊपर आपके पास पाम ट्रीज हैं या कोकोनट ट्रीज आपको दिख रहे हैं. तो ये आपकी पूरी टैक्सा मतलब स्पीशीज, ये स्पीशीज आपकी वैरायटी है, तो ये आपकी रिचनेस ऑफ स्पीशीज हो गई. तो एक जगह फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द अमेज़न फॉरेस्ट, तो अमेज़न फॉरेस्ट में आपके पास कितने प्रकार की स्पीशीज है, ये आपका मेजरमेंट हो गया अल्फा. द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विच अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज द अल्फा मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आई होप आई एम क्लियर. द नंबर ऑफ स्पीशीज, द वैरिड अमाउंट एंड नंबर ऑफ स्पीशीज which occur in a particular area is the alpha measure of biodiversity. अब बीटा क्या है? Beta diversity is species diversity between ecosystems. This involves comparing the number of taxa that are unique to each of the ecosystems. अब आपको सुंदरी ट्रीज तो मिलेंगे नहीं अमेज़न फॉरेस्ट में, because they are two different ecosystems. ऐसे ही आपको कैक्टस नहीं मिलेगा अमेज़न फॉरेस्ट में. When you compare two ecosystems for the existence of taxa is another word for species. जब आप इन दोनों को मेजर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तब आप बीटा स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. तो अल्फा इज हाउ मेनी स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर रीजन. Alpha is how many in one ecosystem. Beta आपका क्या हो गया? How many between two systems, between two ecosystems. Okay, now we come to the third part which is called the gamma diversity. Gamma diversity क्या है? Gamma diversity is the measurement of the overall diversity for different ecosystems within a region. So आप अगर डेक्कन प्लाटो लेंगे तो डेक्कन प्लाटो में क्या क्या आएगा आपका? डेक्कन प्लाटो में जो एरिया बॉर्डर करता है वेस्टर्न घाट्स को या ईस्टर्न घाट्स को, वो आपका पूरा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का हो जाएगा. जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो डेसिडुअस फॉरेस्ट आएगा, और अंदर जाएंगे तो श्रब्स आएगा, और बीच में ग्रासलैंड्स आएंगे. तो अगर आप ये पूरे डेक्कन प्लेटो रीजन का एक रीजन की सारी इकोसिस्टम्स को एक साथ पढ़ेंगे या कंपेयर करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गामा डाइवर्सिटी.
Gamma diversity is measurement of the overall diversity for different ecosystems within a region. So first आपका alpha हो गया how many in one ecosystem, beta हो गया how many between two ecosystems, and gamma आपका आ गया different taxa in the different ecosystems in a region. You'll have to forgive me for the word, I'm not so familiar, but if you can read it, fine. Otherwise, अपने comment box में डालिएगा, इसको हम लोग define करके आपको बता देंगे. Just remember, alpha is for one particular region, beta is between different regions, and gamma is the different ecosystems in one particular region. Then it becomes a gamma diversity. अब species की evenness क्या होती है? It refers to how close in number each species in an environment is. Mathematically, it is defined as a diversity index, a measure of biodiversity which quantifies how equal the community is numerically. मैं फिर से repeat करती हूँ. Species की evenness refer करती है how close in number each species in an environment is. मतलब अगर जो species किसी भी एक environment में exist करती हैं, वो एक दूसरे के replication के आसपास है क्या? Like for example, you have so many different types of bees for pollination. आप किसी रीजन में आपको रेड कलर की भी बीज मिल रही है, येलो कलर की भी बीज मिल रही है. सम ऑफ देम हैव वेरी स्मॉल विंग्स, सम ऑफ देम स्टिंग अ लॉट. अब अगर आपके पास जितनी ये वैरायटी ऑफ बीज एक एरिया में मिलेगी, इससे आप डिफाइन करेंगे कि स्पीशीज की इवननेस क्या है. जब हम लोग ने स्टार्ट करा था तो वी हैड टॉक्ड अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी, और हमने तब क्या कहा था कि स्पीशी की डाइवर्सिटी इज डिटरमिन्ड not only by the number of species within a biological community, but by the species richness, by the relative abundance of individuals in that community. तो आपका जो species abundance है, मतलब for example, if you have say deers, तो आपके पास किसी एक जगह पर barking deer है, कोई कहीं पर आपके पास black buck deer है, कहीं पे आपके पास संबल deer है. तो ये जो है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर हो गए. तो जितनी ये आपकी स्पीशीज हुई, ये रिचनेस ऑफ स्पीशीज हो गई. मतलब देयर इज वन स्पीशी कॉल्ड द डियर, और इसके इतने डिफरेंट कैटेगरीज हो गए. अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक बार्किंग डियर, जो आपका बार्किंग डियर है, उसी में उसकी बहुत सारी वैरायटी वहां एग्जिस्ट करती है. वन पर्टिकुलर स्पीशीज हैज एन अबंडेंट ऑफ सच डियर्स ऑफ द बार्किंग डियर, then that is called species abundance. Like for example, थोड़े दिन पहले on Twitter there was one Twitter went viral, जहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्लैक बक का पूरा झुंड क्रॉस कर रहा था. This was in one of the biosphere reserves in Gujarat, and he appreciated that. So that black buck is on the verge of extinction. It is now only concentrated in parts of Rajasthan and parts of Gujarat. Black buck again is a kind of a deer, और इसकी स्पीशीज का जो ह्यूज नंबर जब प्राइम मिनिस्टर ने देखा तो इज वेरी हैप्पी, एंड दे सेड दैट अबाउट 700 ऑफ देम एग्जिस्टेड इन दैट बायोस्फीयर रिजर्व, और उसमें से ये 250 एक साथ क्रॉस ओवर कर रहे थे. तो दैट इज कॉल्ड स्पीशीज अबंडेंस. एंड स्पीशीज रिचनेस क्या होती है? अगर ब्लैक बक और आपका बार्किंग डियर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करें एक ही जगह पर, तो वो स्पीशीज की रिचनेस होती है. दीज आर कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम गिविंग यू. इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, व्हेन यू यूज दिस टैक्सोनॉमी या वर्ड, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, और उससे आपका आंसर बेहतर होगा. तो सिंपली ये समझ लीजिए कि किसी इकोसिस्टम में बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीशीज है. अगर XYZ बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज है तो वो स्पीशीज रिच बायोस्फीयर रिजर्व है. और अगर एक ही स्पीशीज बहुत लार्ज मात्रा में मिलती है तो वो स्पीशीज अबंडेंस है. फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा, एक्चुअली अगर आप थार डेजर्ट को देखिए
तो Thar Desert is not only a part of Gujarat and Rajasthan. Punjab and Haryana were also desert areas. How did they become rich? They became rich by irrigation. This is how we humans have changed the biosystems of the world and of our country also. Now today, Punjab and Haryana are called the food bowls, the richest production, highest production of wheat and rice for the country only through irrigation. और irrigation इनके लिए हमने कैसे किया? हमने इनके लिए भाखड़ा नांगल डैम बना दिया. जो डैम ब्यास पे बना उसके वाटर्स इनके लिए हमने डाइवर्ट करे. तो how many areas went dry because of these hydro power projects? One needs to understand that. So the diversity and richness of one area, and that too which is completely human, मतलब human intervention की वजह से यहाँ पे ये पौधे उग रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि 12 crops, there are 12 crops which have become staple to humans, and that is why we are losing on biodiversity in a major way. अगर आप ये देखिए एक कॉन्सेप्ट आया मोनोकल्चर कल्टिवेशन. व्हाट इज मोनोकल्चर कल्टिवेशन? मोनोकल्चर कल्टिवेशन इज व्हेन वी टेंड टू ग्रो only one crop over a long period of time. This has happened in North America. वहाँ पे पटेटो की जो एक क्रॉप होती है उसको बहुत बहुत लंबे अरसे तक पैदा किया जा रहा है और एज अ सिंगल क्रॉप पैदा किया गया. उसकी वजह से पटेटो वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन नॉर्थ अमेरिका. एंड फिर 2 वाइल्ड वेराइटीज ऑफ पटेटो को उनसे इंटरमिंगल किया गया. उसके बाद ये क्रॉप थोड़ा स्टेबलाइज हुआ. इसी तरह से कहा जा रहा है that over a period of time, because of climate change, now these reasons which I keep giving you, please keep noting them because they will make your answers better. When we talk about the effects of some kind of climate change in the environment which affects your biodiversity, तो हम लोग चॉकलेट बहुत पसंद से खाते हैं. Now chocolate का जो main ingredient है, which is your cocoa, which comes from a tree called the cacao tree. Cacao tree is native to the Ivory Coast in Africa. और इसके सिंगल प्लांटेशन से कह रहे हैं that by the end of the century 70% of this crop will die on the Ivory Coast. Reason being rising temperatures, again global warming, again climate change. इसी तरह से कहा जा रहा है that coffee is a native plant of Ethiopia, again Africa. और यहाँ पर पूरी कॉफी प्लांटेशंस बहुत दिन पहले in 1900s the coffee plantations were destroyed, and जब 2 varieties of wild कॉफी अरेबिका ही हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जब 2 वाइल्ड varieties of कॉफ़ी को इनसे इंटरमिंगल किया गया, इनके जीन्स को शेयर कराया गया, उसके बाद the coffee became sturdy enough to be produced as a single crop here. अगर आप अमेज़न फॉरेस्ट में जाएंगे, अमेज़न फॉरेस्ट में पहले वाइड एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर कट डाउन बिकॉज ऑफ कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप. व्हाट वाज दैट? पाम ट्री. उसके पहले क्या था? रबर. ऑल दीज मैसिव प्रोडक्शंस एंड engaging in monoculture results in a loss of biodiversity. एक रिपोर्ट UNCTAD की कहती है कि जो 1 स्पून आप लेते हैं सॉइल का, उसमें 50,000 डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया हैं जिनकी मैपिंग भी अभी तक नहीं हो चुकी है. सो दैट इज द काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. एंड व्हेन वी से दैट इन अ स्मॉल 15-acre लैंड of Borneo we have 700 different species of trees, we are almost saying that we have not been able to map the various genomes that exist on planet Earth. Now taking this further, we are now going to talk about the patterns of biodiversity, जिसमें से मैं बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ कि लैटिट्यूड्स में अगर आप ट्रॉपिक्स के बीच में जाएंगे तो आपकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी. ट्रॉपिक के से आप मूव करेंगे टुवर्ड्स द एंटार्क्टिक सर्कल और टुवर्ड्स द आर्कटिक सर्कल विच इज योर 66 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो आपकी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती जाएगी. फॉर एवरी 166 मीटर राइज यू विल हैव अ फॉलिंग टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री. तो बायोडाइवर्सिटी थोड़ी थोड़ी, जैसे वेस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, पर आप जैसे ही माउंटेन्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी बायोडाइवर्सिटी गिरती है. तो
there is not a directly proportional relationship between temperature increase or altitude increase so far as biodiversity is concerned. It is a kind of a hyperbola. तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. ये बिल्कुल ऐसे नहीं जा रहा है. It's not going straight like that. It's a hyperbola. Which means that कि थोड़े दिन तो बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो घटता चला जाता है. We will just keep India for ourselves because now we will take up the Indian ecosystem. तो उसके बारे में आपको हम लोग बताएंगे. Okay, so we come to the biogeographical zones of India and its biodiversity. अब biodiversity में सबसे पहले we will take the Himalayas. Himalayas are the most important. और Himalayas के 3 parts है. आप लोग ने पढ़ा है? The Greater Himalayas, then the Middle Himalayas, and the Lower Himalayas. So we are talking about Himadri, then Himachal, and then Shivalik. Are you aware about this? कि 3 types of Himalayas हैं. जो highest है उसमें आपका ये आता है, आपका Mount Everest आता है, आपका काराकोरम रेंज आता है. And when we going to talk about the Indian subcontinent, यहाँ पर मैं आपको countries के नाम बाद में बताऊंगी. But Himalayas as such are a whole. We share the Himalayan wall with Pakistan, with China, with Nepal, and towards this side with Myanmar. तो मैं इन सब के बारे में एक संग बोल रही हूँ. Collectively आपकी जो ये पूरी range of northern Himalayas है, इसमें आपके highest range है Mount Everest, K2, Karakoram, then you have Nanda Devi Peak, all coming in the Greater Himalayas. उसके बाद आपके Middle Himalayas आते हैं. Middle Himalayas are your Himachal. ये कॉल जो हिमाचल का एरिया है आपका. और फिर आपके शिवालिक रेंज जो सबसे कमजोर आपकी हिमालयाज माने जाते हैं. आपके जो हाईएस्ट हिमालयाज है उसी से आपके सारी रिवर सिस्टम्स ओरिजिनेट करते हैं. आपके बहुत सारे रिलीजियस हॉटस्पॉट्स या लाइक योर अमरनाथ, योर बद्रीनाथ, योर केदारनाथ आर ऑल सिचुएटेड इन द हिमालयाज. तो एक इंडिया का इकोसिस्टम है विच इज कॉल्ड द ट्रांस हिमालयन जोन. इसमें 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडिल एंड लोअर हिमालयाज, और तीनों की वेजिटेशन फर्क है. उसके बाद वी विल टॉक ऑफ द डेजर्ट विच इज द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट अ पार्ट ऑफ राजस्थान, अ पार्ट ऑफ गुजरात, एंड हियर द इकोसिस्टम्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. फिर हम सेमी एरिड एरियाज की बात करेंगे. जो सेमी एरिड हमारा जोन है कंट्री का, विच इज इनसाइड टुवर्ड्स द little as we move towards from the Western Ghat towards the plain. This is called the semi-arid region. We have the Western Ghats per se, we have the Deccan Peninsula, the Gangetic Plain, and the northeast part of the country. This northeast part is in terms of biodiversity, is richer than the western part. तो eastern Himalayas ज़्यादा rich है as compared to western Himalayas. उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल की मॉनसून है, दिस बे ऑफ बंगाल मॉनसून व्हिच स्ट्राइक्स दिस एरिया हियर, इफ यू थिंक ऑफ इट, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, इज मच हेवियर देन दैट व्हिच स्ट्राइक्स द वेस्टर्न घाट. रीजन, द रीजन इज the Bay of Bengal is a warmer sea. It's a tropical sea as compared to the Arabian Sea. और अभी जो हम लोग लास्ट टाइम आपको बता रहे थे कि जो हमारा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब अरेबियन सी इज वार्मिंग अप. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर अब ओरिजिनेट ज्यादा हो रहे हैं, जबकि ट्रेडिशनली बे ऑफ बंगाल में हुआ करते थे. दिस इज द क्लाइमेट चेंज दैट वी आर सेइंग, बिकॉज ऑफ विच वी आर हैविंग क्लाउड बर्स्ट एंड वी आर हैविंग फ्लैश फ्लड्स. I don't know आप लोगों ने अभी देखा था कि नहीं ट्विटर पे, but last week in Jammu and Kashmir there was a cloud burst and 60 people lost their lives in Jammu, in and around that area because of a cloud burst. I have a screenshot of that. I will put on your page. आप उसको देखिएगा. Now you are going to surely get a question on that. I am very convinced, but let's see. अब ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, ये ज्यादा पानी इसलिए लेके जाती है. ये मॉनसून आपकी, the monsoons are coming from here. They get divided, this side. Here they pick up the moisture and then shed it. Because of the Himalayas,
they do not cross over. And what comes in the rain shadow area? चाइना का कौन सा हिस्सा आता है? The plateau of Tibet. टिबेट कहता है मैं चाइना का हिस्सा हूं नहीं, but for all practical purposes it has been occupied by China. So the rain shadow area for the Himalayas, for our monsoon winds, is the plateau of Tibet. तो plateau of Tibet में आपकी जो भी वेजिटेशन है वो इधर से बहुत फर्क होगी. अगर आप 9th-10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी या जो वेजिटेशन एग्जिस्ट करता है उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई विल जस्ट गिव यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यू वर्ड्स ऑफ द फौना. फ्लोरा आपके प्लांट्स हो गए एंड फौना आपका एनिमल किंगडम हो गया. तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी सो दैट यू जस्ट हैव एन आइडिया. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड टू बिकॉज इट विल बी रेपिटेशन. आप उसको ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ेंगे. So we'll go one by one and then we will also talk about the islands. So we are going to talk about the Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands are considered, और मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ आपके लिए क्योंकि in terms of biodiversity इंडिया के लिए ये most important है. एक question कहीं पर पूछा गया कि which is the most rich biodiversity state in India. तो किसी ने अंडमान निकोबार लिखा है ना. अंडमान निकोबार इज नॉट अ स्टेट. अंडमान निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी. सो यू हैव टू क्वालिफाई द सर्विसेज, देन यू हैव दैट इग्नू वाला इग्मैट वाला आपका जो होता है उसमें अंडमान निकोबार आता है along with Chandigarh and Delhi. That is the area which is then administered. So Andaman Nicobar will not be the richest the state with the richest biodiversity. It will be Madhya Pradesh. But अगर area पूछेंगे तो आप अंडमान निकोबार कह सकते हैं. And why अंडमान निकोबार becomes important? क्योंकि जो 34 हॉटस्पॉट्स कहे जा रहे हैं, और हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बिकॉज इन माई परसेप्शन दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. जो वो 34 हॉटस्पॉट्स कहे जा रहे हैं उसमें से 4 हॉटस्पॉट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री. तब वो इंडिया को बिलोंग करते हैं. अब हॉटस्पॉट का परिभाषा क्या है and why do they become important, that we will discuss after I have told you the ecosystems which exist in India. So we are saying that there are 10 ecosystems, different ecosystems which exist in India. और जब मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो I told you that there are 17 biospheres which exist on planet Earth. और वो 17 biospheres आपको almost $33 trillion annually cost करते हैं. बट अब आप उसका आंकड़ा नेचुरल इकोनॉमिक्स में लगाते हैं सिंस वी आर नॉट एबल टू मेजर कि कितना हाउ मच वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स. सो फर्स्ट वी विल गो इनटू द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार कम नियर द ट्रॉपिक्स. दे आर अ पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल. सो एंड द लक्षद्वीप इज इन द अरेबियन सी. यही 3 हमारे पास आइलैंड्स हैं. Andaman Nicobar in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea. Andaman Nicobar are 348 north-south oriented islands. The zone possesses a unique kind of plant and animal life with a high degree of endemism. अब ये पढ़िए endemism. Endemism is essential to hotspot. Endemism का मतलब क्या होता है कि ये जो स्पीशीज है वो यूनिक है इस इकोसिस्टम की. सिर्फ यही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती. तो अगर आप इसको, and it has been said that at the top of this chain of extinction there is only one person who is responsible for the 6th mass extinction, and who's that? Humans. We as humans with our voracious capacity to eat everything, to consume everything, हम लोग क्या हो चुके हैं? complete consumers हो चुके हैं. And what are we eating into? The environment. You should always understand that even as person X, you are eating into your environment. आप यहाँ पर एयर ब्रीथ कर रहे हैं, यहाँ से आप वाटर ले रहे हैं, यहाँ से आप फूड ले रहे हैं, यहाँ पे आप अपने सराउंडिंग्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
नीचे आप रोड बना रहे हैं, all these you are doing yourself. So you are the voracious predator. Predator क्यों? आप कुछ contribute नहीं कर रहे. Why, even if you reproduce, you are only putting pressure of population on the earth. And it is said that if we are the way we are living, we will need more 1.56 times of this earth to just survive the next century. The rate at which we are increasing. And then there's a lot of halla, and because you're in Allahabad, तो आपकी गवर्नमेंट ने एक पॉपुलेशन बिल लाया है. आई होप यू ऑल हैव रेड अबाउट इट कि वो पॉपुलेशन बिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए. नाउ वी बिकमिंग इक्विवेलेंट टू चाइना इफ यू डू दैट. Okay, that's a different part and a different debate altogether. What I'm trying to tell you is that the sixth extinction comes because we have a tendency to consume more. And that is why, because in this symbiotic relationship, हर जगह एक environment exist करता है. अगर मैं आपको बात करूंगी कि हमारी कोई भी, for example आप economics ले लीजिए. If you're talking about demand and supply, demand and supply exclusively cannot exist. They exist in the environment of a market. कोई मार्केट होती है तब उसमें डिमांड सप्लाई आता है. सेम वे आप चाहे कहीं भी रहेंगे, आपको कुछ सराउंड करता रहेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द अर्थ हैज बीन मेड एंड इट हैज एग्जिस्टेड ओवर ऑल दीज इयर्स विदाउट रीचिंग द लेवल एट विच वी हैव ब्रॉट इट फॉर एक्सट्रीम. It's a kind of a crisis where we are now thinking only in terms of 2050. 2050 तक हमको ये काम कर लेना है, हमको 2050 तक अपने सारी स्पीशीज को कंट्रोल कर लेना है, हमें वाटर को पूरा क्लीन कर लेना है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व कर लेना. दैट इज हाउ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इज टॉकिंग एट द प्रेजेंट टाइम. बट 2050 इज अ यूटोपिया because we don't know the rate at which we are going to do anything about it. आपने सुना होगा जब एमनेस्टी इंटरनेशनल देयर वाज दैट ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स जिसमें इंडिया कुछ नीचे गिर गई थी, एंड इट वाज सेड दैट इट हैड बिकम इवन वर्स देन बांग्लादेश. देन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ आवर कंट्री? द रिएक्शन ऑफ आवर कंट्री वाज कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी विच इज कॉल्ड द एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो जो है वो एक बहुत बड़ी डिफॉल्टर है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया. एंड आफ्टर दैट व्हाट डिड इट से? It said that because it's a defaulting party and that because it has some foreign accounts, therefore we do not recognize Amnesty International. So what are we saying? We are saying कि Human Development Index में जो इंडिया को प्लेस दी गई वो गलत है या सही is a different issue. What we are trying to point out is that the agency which was involved in projecting India on a lower level of Human Development Index is incorrect, is bogus, and we cannot rely on that. That is not how you're going to deal with the problem of biodiversity. This cannot be a part of your question, but this has to be a part of your thinking when you write your answer. जब आप सोचें कि आप अपने environment को कैसे conserve करेंगे, आप कहीं से उठते हैं तो बत्ती पंखे हम कभी बंद नहीं करते, because we think कि electricity हरदम के लिए. हम कभी ये सोचते हैं पानी पीते वक्त हम एक बॉटल में से इतना पानी छोड़ देते हैं, तो why we don't use the full bottle of water? Because we never think that this water is going to be useful to our next generation. And that is where we get the concept of sustainable development. तो biodiversity per se आपको static information दे रहा है अर्थ के बारे में, और जब आप इसके conservation की बात करेंगे then you will be talking of steps of how we are going to control this process of extinction which is taking place very fast. So Andaman and Nicobar Islands में there is a high degree of endemism. Endemism means they contain species of plants and animals which are just exclusive to those islands. They are not available anywhere else. अब अंडमान में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैनोपी है, फिर यूकलिप आपके पास इन पे एपीफिटिक वेजिटेशन है. एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स आर दोज प्लांट्स जिनके रूट्स वाटर के ऊपर होते हैं so that they can breathe. और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? बिकॉज इनके रूट्स होल्ड करते हैं सॉइल को, और आपकी जो सुनामी होती है या हाई टाइडल वेव्स होती हैं या स्टॉर्म्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की, सी वाटर को रोकने की, उसके लेवल को ना राइज होने दें, इस तरह की इनकी प्रक्रिया होती है. इसलिए एपिफिटिक प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
And when we do dredging of sand in coastal areas, we are harming such epiphytes which occur near the seashore. अब नॉर्थ निकोबार आइलैंड में आपके पास फॉरेस्ट हैं जिसका डोमिनेंट वेजिटेशन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड इफ यू कम टू लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में आइलैंड में आपको ज्यादा करके बनाना प्लांट मिलेगा, कोलकासिया मिलेगा, चंबू मिलेगा, ब्रेड फ्रूट मिलेगा एंड श्रब्स. If you look at the animals in Andaman, you have the Andaman, which is called the Andaman wood pigeon, native to Andaman. You have the Narcodum hornbill bird. You have the Andaman scoop owl and the blue-eared kingfisher. They are wild boars, elephants, and various species of sea turtle. जब आप hotspot की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि there are so many species which are on the verge of extinction in the Nicobar Islands. और लक्षद्वीप की marine life is very rich. यहाँ पे आपको common and sleen vertebrates, cattle and poultry मिलती है और molluscous form में आपको reef मिलती है. The Great Barrier Reef in Australia. If you go to Australia, because of the climate change, because of the rise in temperature, also mining in the seas is resulted in great portions of the coral reef being dead. Mollusks are responsible for the growth of coral reefs under the sea, and because of the rising temperatures, these mollusks are dying and the coral reef is becoming dead. यहाँ पे crab मिलता है जैसे the hermit crab, and there is colorful coral fish, parrot fish, butterfly fish and surgeon fish which are found in plenty in the Lakshadweep Islands. और when we talk of the coast, अब आप कोरोमंडल कोस्ट इधर आ जाइए, इधर आप आ जाइए अरेबियन सी की तरफ, महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट देखिए, तो इंडिया हैज अ वास्ट कोरल स्ट्रेच ऑफ अबाउट 5,689 kilometers. On the west, Arabian Sea है which washes the shore of Gujarat and Maharashtra, Goa and Karnataka. East side में Bay of Bengal है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, Sundarbans in West Bengal. Sundarbans are considered, sometimes they say there are 34 hotspots in the world and sometimes they say certain statistics say 36. जब वो 36 कहते हैं तो उसमें वो सुंदरबंस भी इंडिया के इंक्लूड करते हैं और सुंदरबंस को होना भी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द हॉटस्पॉट. और सुंदरबंस आर द ग्रेट एरिया ऑफ डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. तो इस एरिया में आपको बहुत तरह की मरीन लाइफ मिलती है. यू ऑल्सो फाइंड द सुंदरबन टाइगर्स विच आर देयर. तो यहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा है आपका, मैनग्रोव्स है, बीचेस है, मड फ्लैट है एंड मरीन एंजियोस्पियम पास्चर्स. फौना में आपके पास कोस्टल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है जैसे डॉल्फिन है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं. दीज आर फाउंड इन ओडिशा, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड दे हैव बीन कंजर्व्ड फॉर डिफरेंट रीजंस और इनके लिए एक अलग से पार्क है. फिर वहाँ पे है लेदर एंड लॉगरहेड सी टर्टल्स, फिर एस्चुरीन टर्टल, द बातुगुआर बस्कर ऑफ द सुंदरबंस एंड द सॉफ्ट शेल एस्चुरीन टर्टल्स. मतलब वेरियस वैरायटीज ऑफ टर्टल्स एंड क्रैब्स आपको इन एरियाज में मिलते हैं. फिर मॉनिटर लिजर्ड मिलती है, मंकीज मिलते हैं एंड द सुंदरबन टाइगर. So we've talked about India's coastal region, we've talked about India's islands, we're going to talk about Northeast India. Northeast India में, Northeast India is very important because again it becomes a part of the another hotspot which is the Indo-Malayan area. अब Indo-Malayan plateau में आपका क्या आता है, आपका बर्मा आ जाता है, आपका इंडोनेशिया आ जाता है, आपका बोर्नियो आ जाता है एंड सुमात्रा. All these areas are part of the Indo-Malaya hotspot. तो जो Indo-Malaya hotspot है उसका ही फ्लोरा फौना आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है. And the Brahmaputra Valley contains unique natural vegetation of swamps, grasslands, woodlands and forest. और fauna में आपके पास यहाँ पे the one-horned rhinoceros है, which is on the verge of extinction. You have buffaloes, you have swamp deer, you have a hog deer, you have a pygmy hog, you have a hispid hare, all native to the northeast. इसके subcontinent में waterfowl and other birds
which travel between this subcontinent and Siberia and China are to be found in the northeast. So we talked about 3 ecosystems in India. One is the northeast, one is the islands, and one is the coastal region. Now we come to the Western Ghats. Western Ghats are our tropical evergreen forest regions of India. About 2/3 of the plant in the Western Ghats are endemic, meaning native to that region. इसके फ्लोरा में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, स्क्रब जंगल मिलता है, रेनफॉल सवाना मिलती है, पीट बॉग्स मिलता है और मिरिस्टिका मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देयर इज अ स्पीशीज richness in the Western Ghats. When you will write the Western Ghats have a species richness and also species abundance. Richness है because of the variety of species which are there, and abundance because एक species भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिल रही है. अब primates, यहाँ पे आपको हर तरह के जानवर मिल रहे हैं. Primates, rodents, squirrels, orangutan, carnivores और hornbill भी मिल रहा है आपको. प्राइमेट्स में आपका नीलगिरी लंगूर है, द लायन टेट मकाक है, रोडेंट्स है, स्क्विरल्स है. कार्निवोर्स में आपका मालाबार सिवर्ट है, रस्टी स्पॉटेड कैट है, ओरंगुटान आपको नीलगिरी हिल्स में मिलता है, एंड हॉर्नबिल इज अ बर्ड विच यू फाइंड इन दिस एरिया. वी कम टू द डेक्कन पेनिनसुला, विच इज योर area which was very rich in volcanic activity for a long period of time, and you have the black soil here which is now being exclusively used for cotton. तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा किस चीज से अफेक्ट हो रही है? It is being affected by overpopulation. Because of the overpopulation, vast areas of forest are being cleared for the purpose of vegetation और growth of crops. आप इतने सारे क्रॉपिंग पैटर्न लगाते हैं कि पूरे साल आप अपने क्रॉप की फील्ड में एक वीड भी उगने नहीं देते. It is said that these weeds are important for biodiversity because they maintain a chain which you call the eutrophication chain or nitrogen fixation chain in the soil. They make the soil rich. पर हम क्या करते हैं? हम जब वीड उगाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वीड नहीं आना चाहिए. हम वीड को निकाल के फेंकते हैं. हम एक ही जगह में different types of crops लगाते हैं. So because of our cultivation pattern, because of excessive use of pesticide, and why are we cultivating more? We are cultivating more because we need food for the population of India. And then on top of that, we have the farm bill also. And we need the subsidy also. So I don't know how much we need, but we keep wanting to need. And that is why we are having this biodiversity crisis. And you have to learn such a big chapter for civil services. That is also there. Okay, so coming to the Deccan Peninsula. Deccan Peninsula आपका सबसे बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया में. It is 1,421,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. इसमें आपका कौन सी एरिया आती है? मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और उड़ीसा आता है. The zone has deciduous forest, degraded shrubland and dry evergreen forest. और इसका फौना में आपके पास क्या आ जाता है? चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंघा, barking deer, the gourd, black buck, elephant, especially in Bihar, Odisha area, and wild buffalo in Odisha, MP and Maharashtra. इस एरिया में ये सारी चीजें आ जाती हैं. Come to the Gangetic Plain. Somewhere here. गैंजेटिक प्लेन में अब आपके पास कोई बायोडाइवर्सिटी तो रह नहीं गई. आप इलाहाबाद में देख रहे हैं, आप तो पूरा का पूरा what we call the कछार एरिया. वहाँ पे तो सिर्फ आप एग्रीकल्चर ही में इंडल्ज करते, तो कोई ना कोई आप क्रॉप हर समय उगाते ही रहते. आई एम नॉट डिग्रेडिंग द फैक्ट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who get their livelihood from farming. I'm not saying that without agriculture we can survive, but we can surely peg the numbers which are to be fed. And please, when you examine the population bill, look at it in that light. When people say that it is because of XYZ reason, that it is aimed at a community, that from a process of democracy we are going towards what is called communism of China, it is an incorrect statement.
All that we are trying to say in the population bill is, we have been trying to be a welfare state, but it's not working. How much of subsidy? And the subsidy is the taxpayers' money. सब्सिडी अपने आप से कोई गवर्नमेंट नहीं पैदा कर सकती, जो हम और आप टैक्स पे करते हैं उसी से सब्सिडी आती है. तो जो सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कंट्रोल से चावल दाल देके, उसके ऊपर लिमिट क्यों नहीं लगाई जाए एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए? Why should we have more children? If they are more than 2, we will not give you the subsidy. There is nothing which makes you an autocratic state if you take a stand. It only says welfare of the state is dependent upon the kind of lifestyle that you are going to lead. This is your consumption pattern, and because of the earth, we are limited in our consumption pattern, and we cannot support the big families that you want to indulge in, because every pair of legs or the carbon footprint that we put on this earth is adding pressure to the earth. जब मैं आपको बता रही थी कि 97% the earth is now populated by humans and their livestock, जिस livestock में सिर्फ 5 तरह के animals हैं, only 3% of wild animals are left. तो जब आप टीवी चलाते हैं और वाइल्ड एनिमल को देखते हैं तो वही सिर्फ आपके लिए बायोडाइवर्सिटी अब हो गया. Whereas in reality the earth was full of wildlife, and this wildlife is as important for our existence today as it was some 10,000 years ago when we started this species transfer. Species transfer क्या होता है? We as humans have carried a particular species from here to another country. जैसे कॉफी हमारे यहाँ नहीं पैदा होती थी, हम उसको इथोपिया से लेके आए, हमने उसको यहाँ लगाया, बहुत अच्छे से लग गई. अब हम सिर्फ कॉफी प्लांटेशन कर रहे हैं कर्नाटक में. अब कॉफी प्लांटेशन कर रहे हैं, उससे हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं अपने हिल स्लोप्स का. टी इज नेटिव टू चाइना, हम टी वहां से लेके आए, टी बहुत अच्छे से उग रही है. बट देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चाइना इज अ पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट. सो एटलीस्ट एशिया तक लिमिटेड है. But when we cross transfer species, there is mass extinction of the species because they do not know कि किस environment में what is the kind of antibodies we need to survive. For example, we keep blaming a particular country for the coronavirus. Now, corona is a virus, and it is said that as biodiversity decreases, our vulnerability or exposure to such viruses, to such parasites will increase over a period of time. So keep that in mind. Coming back to the Deccan Peninsula, अब coming back to the Gangetic Plain, यहाँ पे हमने कुछ नहीं छोड़ा है. तो अब यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रासलैंड्स बचे हैं, alluvial plain है, और यहाँ पर forests have been replaced with intensive agriculture. तो फॉरेस्ट जो deciduous forestries थे, ओक, साल, टीक, ये सारे ट्रीज रिप्लेस हो गए हैं और हम सिर्फ अब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं ऑफ व्हीट एंड राइस एंड सम बिट ऑफ पल्सेस. इसमें सॉल्ट सेलेक्ट पॉपुलेशन में आपको नील गाय मिलती है, थोड़े बहुत ब्लैक बट मिल जाते हैं, थोड़े चिंकारा मिल जाता है, अपने जो फ्रेश वाटर्स है वहाँ पे थोड़े क्रोकोडाइल मिल जाते हैं, मगर मिल जाता है, घड़ियाल थोड़े मिल जाते हैं. There is some community of turtles and dolphins also which are endemic to the region. Now we come to the desert, the Thar Desert, which is located in Gujarat and West Rajasthan. I already told you Punjab, Haryana were a part of it, but now we have said that they know that because of irrigation, we have changed the pattern of vegetation for Punjab and Haryana. And so these areas have ecological adaptations of the plants. यहाँ की natural vegetation क्या है? Tropical thorn forest है, tropical dry deciduous forest है, sandy desert है, and seasonal salt है, marshes हैं और mangroves हैं. Typical shrubs भी यहाँ पे होते हैं, and इसको आप लिखिए Prosopis cinerea. इसको लिख देते हैं आपके लिए, otherwise आपको spelling इसके लिए आ पाएगी.
Chrysoprase cinerea एंड साल्वाडोर, ये यहाँ के कॉमन टाइप ऑफ ट्रीज हैं इंडियन डेजर्ट के। और यहाँ पे आपको ब्लैक बक, गजेला, डेजर्ट फॉग, डेजर्ट कैट, द इंडियन बास्टर्ड, ये सारे यहाँ के नेटिव हैं। सेमी एरिड आपका आता है। सेमी एरिड इज अबाउट 508,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडिया और 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर द सेमी एरिड इकोसिस्टम। ये आपको थोड़ा थोड़ा वेस्ट एशिया में मिलता है, पाकिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका के तरह का इकोसिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ग्रास की सेवरल स्पीशीज हैं और थोड़े बहुत श्रब्स हैं। Natural vegetation is tropical thorn forest. There are mangroves in the extreme north, and fauna consists of large herbivores like the black buck, the chausinga, gazella, नीलगाय, और इसी में आपका लायन भी आता है जो कि आपको अब गिर फॉरेस्ट में सिर्फ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। फाइनली वी विल टॉक अबाउट द हिमालयाज। तो पहले हम हिमाद्री की बात करते हैं, द आउटर हिमालयाज। हिमाद्री में आपका लद्दाख, लाहौल स्पीति एरिया आता है। यहाँ पे स्पार्स एल्पाइन आपको स्टेप टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है, और यहाँ पे आपको वाइल्ड याक मिलेगा, टिबेटन एस मिलेगा, टिबेटन गजेला मिलेगा और टिबेटन एंटलोप मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेटिव बर्ड है जिसको कहते हैं द ब्लैक नेक्ड क्रेन। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया। And the other Himalayas, which includes the middle, which is your Himachal Himalaya and the Shivaliks. इस एरिया में आपको मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे मेपल्स मिलेंगे, वॉलनट मिलेगा, ओक मिलेगा, वैरायटी ऑफ कॉनिफर्स मिलेगा, थोड़ी बहुत स्क्रब वेजिटेशन मिलेगी। और एनिमल्स में आपको यहाँ पे हंगल मिलेगा, कश्मीर स्टैग जिसको आप कहते हैं हंगल, और फिर इसके बाद स्नो लेपर्ड, इंडियन राइनोसरस एंड क्लाउडेड लेपर्ड। These are found in these regions. तो एक ट्रांस हिमालय हो गया, एक हिमालय हो गया, द डेजर्ट हो गया, सेमी एरिड हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, डेक्कन पेनिनसुला हो गया, गैंजेटिक प्लेन हो गए, द कोस्टल रीजन्स हो गया, द आइलैंड्स हो गए। सो दीज आर योर 10 इकोसिस्टम्स विच एग्जिस्ट इन आवर कंट्री विच इज इंडिया। अब ये 10 इकोसिस्टम्स आप अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी शेयर करते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो भी आप शेयर करते हैं दूसरी कंट्री, इस तरह की वेजिटेशन आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर करते हैं। जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसकी वेजिटेशन भी आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द हिमालयाज। व्हाई आई एम सेइंग दिस नाउ इज बिकॉज वी आर गोइंग टू कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर lecture today, which is the biodiversity hotspots. अब जैसे आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया है, वैसे ही आपके जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इसको बनाने के लिए एक दूसरी एनजीओ है विच इज कॉल्ड कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल। इट्स कॉल्ड कॉन्जर्वेशन Conservation International ने its headquarters is located at Crystal City in Virginia, North America, और इसके mission is to spotlight and secure the critical benefits to nature which is to be provided by humanity. अब Conservation International ने 1989 में there was a person by the name of Norman मायर्स। जो नॉर्मन मायर्स है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को बनाया जिसको इन्होंने उस समय कहा कि दीज आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दिस कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, हु देन अडॉप्टेड द आइडिया एंड केम अप विद 34 हॉटस्पॉट्स। जब नॉर्मन मायर्स ने ये पेपर लिखा था तो उस समय उन्होंने 18 हॉटस्पॉट्स ऐसे बताए थे, और जब कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने फिर से अपना सर्वे किया तो दे केम अप विद 34 हॉटस्पॉट्स। Hotspots, and what are hotspots? Hotspots are areas that are extremely rich in species. So there is species richness in a hotspot area of biodiversity, and high endemism, meaning native species वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जो कि किसी और
देश में और किसी और इकोसिस्टम में नहीं मिलती है, and they are under constant threat. So what is the concept? There are two concepts of hotspots which are very important to understand. What are the two concepts of hotspots which are very important to understand? One is your endemism. That is, there is a level of species richness. एक तो आपकी species richness हो गई, दूसरा native to or does not exist anywhere else. This is the first concept of a hotspot. Which is the second concept? Second concept is of threat. These hotspots are now on the verge of extinction, and in some parts, less than 30% of the biodiversity reserve is left. तो जो इस रेंज में आते हैं उन रीजन्स को हॉटस्पॉट कहा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्जर्वेशन. वर्ल्ड को इन एरियाज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम इनको कंजर्व कर सके. So the hotspots are areas which are rich in species, which are high in endemism and are under constant threat. So the concept of richness, the concept of endemism and the concept of threat. Three things. फिर like I told you, मायर्स ने 1989 में 18 आइडेंटिफाई किए थे और अब हमारे पास 34 हो चुके. Around the world, interestingly, these areas contain nearly 50,000. I repeat, 50,000 endemic plant species or 20% of the world's plant species in just about 7,46,000 square kilometers. तो आपके 7,46,000 square kilometers में $7,46,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 50,000 एंडेमिक स्पीशीज मिल रही है, which is almost 20% of the world's population of plant species. To qualify as a biodiversity hotspot, a region must meet two strict criteria. जो दोनों strict criteria क्या हैं? It must have at least 1,500 vascular plants as endemic. You have to write this, please. It must have at least 1,500 vascular plants as endemic, which is to say it must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet. A hotspot, in other words, is irreplaceable. Okay, this is much easier. I'm sorry, I'm learning to write with the board. You'll have to bear with me for a few classes. Okay, so what is it? एक तो पहला आपका first is that it should have 1,500, not 50,000, 1,500. vascular plants, which is endemic and which is irreplaceable, meaning they are found nowhere on this earth. तो अगर ये यहाँ पे खत्म हो गए तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे और नहीं हो सकता.
it must have 30% or less of its original natural vegetation. In other words, it must be threatened. So like I said, there is species richness. It must have 1500 at least endemic plant species which are vascular. अब आप vascular plants क्या होता है आपको पता है? Anybody knows what are vascular plants? They are vascular and non-vascular plants. अगर प्लांट सेल आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, सो बायोडाइवर्सिटी इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हमने बायोडाइवर्सिटी में कन्वर्ट किया है. हु इज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? Who is the person who coined the term biodiversity? Okay, I will tell you who is the person who has given the concept of biodiversity in 1985. This concept was coined by another biologist. Anyways, आपको vascular non-vascular plants पता है कि नहीं पता है? But जो आपकी plant cell होती है वो ऐसे square जैसे आपको दिखाई जाती है, और उसमें यहाँ पे ये vacuoles होते हैं. ये vacuoles किस लिए होते हैं? ये प्लांट को वाटर सप्लाई के लिए दे जाते हैं. इसको जाइलम एंड फ्लोएम भी कहा जाता है. डज इट रिंग अ बेल? जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत आसान होगा ये पढ़ने के लिए. सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल वैस्क्यूलर प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स. दे आर एंजियोस्पर्म्स. तो वो सीड के डिस्पर्सल में भी उनकी मदद होती है. तो ये जो वैस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, दे आर अदर देन श्रब्स, दे आर बिगर प्लांट्स. उनको वैस्क्यूल्स की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि बाहर तक पानी ले जाने में उनको ये जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प करते हैं टू कैरी द वाटर्स टू द एंड्स ऑफ द ब्रांचेस. तो इनकी ब्रांचेस बहुत बड़ी होती हैं. ऐसे प्लांट्स को हम वैस्क्यूलर प्लांट्स कहते हैं. और फिर इनके साथ एक खासियत क्या होती है कि इनके रूट्स जो हैं बहुत डीप जाते हैं टू पुल अप द वाटर. जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प इन दिस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन throughout the plant, and such plants are also known as the angiosperms. आपके बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता होगा. आप you can check out on that. Now I will come to, I've given you 3 definitions which are important to understand a hotspot. One is species richness, second is your 1500 vascular plants which are irreplaceable, and 30% or less of the vegetation is left, which means that it is on the verge of extinction. अब कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने जो 34 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उनमें से जो 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया के हैं, हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे. बाकियों के बारे में अभी आपसे बात करने से फायदा नहीं होगा. बट लेट मी टेल यू कि पूरा का पूरा साउथ अमेरिका एंड मेजर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, इंक्लूडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो, एंड अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस चेन ऑफ हॉटस्पॉट्स. इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं? इंडिया में द हिमालयाज. अब हिमालयाज जो है इसमें कौन कौन सी रीजन आ रही है? द पार्ट ऑफ द हिमालयाज विच आर कमिंग इन पाकिस्तान. सो पाक आर ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार. ये एक हॉटस्पॉट्स है विच इज कॉल्ड द हिमालयाज. इसमें कहा जाता है कि 10,000 प्लांट स्पीशीज हैं, 300 मैमल्स है, 970 बर्ड्स है, 170 रेप्टाइल्स हैं एंड 270 फ्रेश वाटर फिशेज हैं. यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो तिब्बत का याक है उसने सारी घास खा डाली है, और इस वजह से ये एरिया हैज बिकम अंडर अ हॉटस्पॉट. देयर इज अ हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन टू दिस एरिया. द सेकेंड हॉटस्पॉट इज द इंडो-बर्मा. दिस इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट असम एंड अंडमान islands, and it includes Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia and southern China. यहाँ पे जो व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन है, द ग्रे क्राउन क्रोकिया है और ऑरेंज नेक पैट्रिज है. दीज आर ऑल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. यहाँ पे 1300 डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स आपको मिलती है. तो फर्स्ट आपका हॉटस्पॉट हो गया हिमालय, जिसमें अदर कंट्रीज भी आ रही हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. सेकेंड इज योर इंडो-बर्मा विच इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बट डज नॉट इंक्लूड असम और अंडमान रीजन. इंडो-बर्मा का जो एरिया है, जो when we had drawn this part and we're talking here,
जो इंडो बर्मा का एरिया है, दिस इज थ्रेटेनिंग बिकॉज यहाँ पे कल्टिवेशंस बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज नाउ. इट इज अ वेरी हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया, और जो आपकी डेंसिटी है वो इस वजह से है बिकॉज ऑफ अ पॉपुलेशन बॉम्ब which has exploded in that region. We are talking of countries like Bangladesh, we are talking of Myanmar, we are also talking of the northeast states. अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि the area is diversely very rich because it's hot and humid throughout the year. But यहाँ पे लोग कौन सा cultivation follow करते हैं? It is called the झूम cultivation. I'm bringing in your geography all the time. Don't forget to read your geography when you attempt your question on environment. ये झूम कल्टीवेशन की वजह से आप बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे ट्रीज बर्न कर देते हैं, और उस वजह से ये जो झूम है, या आप इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा थ्रेट में है. अब आप एक और हॉटस्पॉट इंडिया का आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आप कहते हैं सुंडा लैंड. प्लीज ऑल ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट करेक्ट. सुंडा लैंड, इट्स नॉट द सुंदरबंस, इट इज SUNDA, सुंडा लैंड. सुंडा लैंड में आपका कौन कौन सा एरिया आ रहा है? इसमें आपके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आएंगे, इंडोनेशिया आएगा, मलेशिया आएगा, सिंगापुर, ब्रुनाई और फिलीपींस. So these are all group of islands which are coming in the Sunda land. Sunda land is considered to be one of the most recent land masses which we have claimed from the sea in the last 100 years. तो यहाँ पे कई सारे ऐसे small islands हैं जो कि बहुत rich नहीं है अभी so far as fauna is concerned. मतलब animals यहाँ बहुत नहीं मिलते, but यहाँ की जो plant या flora है वो बहुत ज़्यादा rich है. So these are, यहाँ पे आपको एशियन राइनो भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है टाइगर भी मिलेगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन रबर का, पाम ऑयल का किया जा रहा है, और इस वजह से सुंडा लैंड की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज where you will find the rhinoceros, the tiger, the elephant, the monkeys all together. One of the few very hot spots of the world which has such a rich diversity of animal life. There is one island called Sunda. अभी एक वो island है जिसके बारे में एक जगह मैंने जिक्र पढ़ा था in one of the readings कि वहाँ पे animal life अभी कम है, but plant life is very diverse and which is threatened by cultivation of palm oil, of rubber plantation and of course rice. ये यहाँ की वजह से इसकी बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है. Then we come to our Western Ghats, we come to this region and we come to Sri Lanka here. ये it's the third hot spot of our country. ये वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका जो है इसमें ट्रिमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर है. यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड भी थ्रेटेंड है. वेस्टर्न घाट्स में ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड एग्रीकल्चर चल रहा है. अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव बीन कट डाउन एंड इट इज ऑन द फ्रिंजेस एंड वर्स्ट हिट बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मॉनसून. बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी of the monsoons, the Western Ghats are now getting badly affected. Sri Lanka alone has 140 endemic species of amphibians. इस वजह से इस एरिया को भी एक हॉटस्पॉट क्रिएट किया गया है. तो we have Western Ghats and Sri Lanka together. We have got the Sunda lands जहाँ के आपके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, प्लस इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस एंड सिंगापुर. We have the Indo-Burma region जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है एक्सेप्ट आसाम एंड अंडमान, और इसमें थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सदर्न चाइना है. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर द हिमालयस. These are the 4 hotspots of our country which we share with our neighbors and are very, very important. The question which will come to you from here is, how many hotspots are there in the world? They will not ask you to name them because 34 नाम लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा.
बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हॉटस्पॉट? तो आप नॉर्मन मायर्स का नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 1989 में उसने इस कॉन्सेप्ट को लाया था और तब 18 उसने एरियाज आइडेंटिफाई किए थे। और अब जो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल है जिसके हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया में है, अब उसने ये कॉन्सेप्ट लगाया है और 34 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें से कि 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दीज रीजन्स। द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन, उसमें आपके जो सेट ऑफ फैक्टर्स हैं दे आर द सेम: ह्यूमन पॉपुलेशन, pollution, climate change, global warming, construction activities, waste management. These are some of the things which are affecting. तो आपकी जितनी human activity है, एक आध पॉइंट शायद उसमें मिस हो गया होगा, जब मैं कॉन्जर्वेशन लूंगी तो मैं उसको आपको फिर से पढ़ाऊंगी, क्योंकि कॉन्जर्वेशन के साथ क्या फैक्टर्स थ्रेटन करते हैं उसे एक्सप्लेन करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. नाउ आई विल आंसर वन क्वेश्चन मोर विच इज, so just bear with me for 5 minutes more. Why is India called a mega biodiversity country? India is called a mega biodiversity country because out of the 4 hotspots जो 34 है हमारे पास, उसमें से 4 इंडिया अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है. That is point number 1. Point number 2, and the endemics of the Indian biodiversity is very, very high. The endemics of India's biodiversity is very, very high. About 33% of the recorded flora is endemic to the country. जो plant species हैं यहाँ पे वो 49,219 plant species है यहाँ पे. They are out of which the 49,219 plant species which are available in our country, 5,150 are endemic. So 30% of our flora is endemic. Out of the 49,219 plant species, 5,150 are endemic to our country. They are distributed in 141 genera. They are distributed in 141 genera. ये इसका distribution है in 141 genera and 47 families. Genera क्या है? आपका पूरा जो एक genetic makeup होता है, तो ये 141 है आपका, और ये एक 47 families का हिस्सा बनता है. This we are only talking about the endemic flora of India. Please remember this. So we have 49,714 kind of plant species, जिसमें से 5,150 आपके endemic है. ये endemic आपकी 47 families में मिलते हैं और 141 genera बनाते हैं. This is one condition for why India is called a mega biodiversity region. India has 26 recognized endemism centers that are home to a third of all flowering plants. In its 2 realms, that is the Palearctic and the Indo-Malaysian area, there are 3 biomes. That is the tropical, 3 biomes मतलब 3 kinds of ecosystem. एक आपका tropical humid forest है, एक आपका tropical deciduous forest है, एक आपका warm desert है, जिस वजह से कि हम इसको biomass area कहते हैं, जो कि पूरी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है. We have 10 biogeographic regions. जो ecosystems मैंने अभी आपको बताए वो 10 है इस देश में, and there are 12 centers of origin of cultivated plants. India is one of the 12 centers of origin of cultivated plants. इसका क्या मतलब हुआ कि cultivation में जो 12 देश हैं उनमें से पहला भारत भी था जहाँ पे कि पौधे उगाए गए. And this we are talking of millions of centuries over which it has taken place. I bring to an end to this session of biodiversity. I have been reading about it a bit too much. It has gone into a great deal of length, but it cannot be helped because the topic itself is very diverse. तो आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिले हैं, कई कॉन्सेप्ट्स शायद आपको फिर समझ ना आए हो
उनको हम वापस से conservation में लेंगे. But when we are doing conservation, we will do only one thing at a time. जैसे when I take project tiger, I will only talk about the tiger reserves. When I take about wetlands, I'll teach you only wetlands that day. तो शायद आपको थोड़ा आराम हो जाए. Thank you so much for your attention. Sorry for the problems which happened before. This board is new to me. The conference room is new to me. So these are some of the issues. Thank you so much for your time.